পুরাকালে যত ঋষিগণ ছিলেন তার মধ্যে একজন ঋষি মার্কেন্ডেয়। আমরা মার্কেন্ডেয় অমর মানে মার্কেন্ডেয় পুরাণ খুব যত পুরাণ আছে তার মধ্যে মার্কেন্ডেয় পুরাণ একটি পুরাণ। তো এই মার্কেন্ডেয় ঋষি খুব জপ ধ্যান করতেন এবং করতে করতে হঠাৎ ওনার কি মনে হলো, উনি মায়া দেখতে চাইলেন। মায়া কিরম হয়, আমরা কি করি, আমরা এই যে এইসব এখানে কষ্ট করে এসছি কি করতে, সংসারে মায়া কাটাবার জন্য। কতদিন ঘর বাড়ি অফিস কাচারি ব্যবসাপত্র সব কিছু ছেড়ে আমরা চেষ্টা করছি মায়া কাটাতে। এখানে একটু দেখতে এলাম আশেপাশে কি আছে না আছে। তো মার্কেন্ডেয় ঋষি কি হয়েছিলেন, ওনার মনে হয়েছিল যে অনেক জপ ধ্যান করেছেন, হঠাৎ তার মনে হলো যে ব্রহ্মা আমাদের মানে ব্রহ্মাজি আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তো ব্রহ্মাজিকে তপ করলেন যে তুমি আমার কাছে এসে কিছু মায়া কিরম হয়, পৃথিবীর মায়া, যেই মায়াতে আমরা সবাই বদ্ধ, তো এই মায়া দেখতে চাইলেন। তখন এবার মায়ার রাজা হচ্ছেন আমাদের বিষ্ণু ভগবান। বিষ্ণু ভগবান ভাবলেন, বাহ খুব ভালো, তো এ এত জপ ধ্যান করে এত তপস্যা করে হঠাৎ মায়া দেখতে চাইছে। তো মায়া দেখতে চাইছেন এবারে, আর আমাদের প্রলয়কর্তা হচ্ছেন আমাদের মহাদেব শিব। এবার শিবজিকে করা হলো, আদেশ করা হলো যে এই মায়া এ দেখতে চাইছে। সব তিন ভগবান একত্র হলেন। হওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে সারা পৃথিবীতে প্রলয় শুরু হলো। আমরা যে প্রলয় দেখি, এই যে মাঝে মাঝে সুনামি আসছে বা আয়লা আসছে, আমফান আসছে, যা কিছু আসছে, এই সমস্ত প্রলয়কর্তা কিন্তু আমাদের শিবজি। তো শিবজি বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি একে একটু মায়া দেখিয়ে দিই। মানে সেই দুষ্টু বুদ্ধি হয়, আমাদেরও যেমন দুষ্টু বুদ্ধি হয়, ওনার ওরম দুষ্টু বুদ্ধি হয়েছিল। হঠাৎ সারা পৃথিবী জলময় হয়ে গেছিল। যেটা আমরা দেখেছি যে আমরা অনেক ক্যালেন্ডারে অনেক ছবি দেখি যে একটা জলমগ্ন অবস্থা, তার মধ্যে একটা বট পাতা, তার মধ্যে একটা ছোট্ট বালক শুয়ে আছে। তখন মার্কেন্ডেয় ঋষিকে ওই অবস্থায় রাখা হলো, একটা বট পাতা। তানু ভগবান দেখাচ্ছেন যে মায়া দেখো, সারা পৃথিবীকে প্রলয় করে দিল, সমস্ত যা কিছু জীবজগৎ প্রাণী জগৎ যা কিছু আছে সবাইকে জলে ডুবিয়ে দিল। এবং মার্কেন্ডেয় ঋষি বসে বসে দেখছেন যে একটা বট পাতার মধ্যে একটা ছোট্ট শিশু পা খেতে খেতে আসছে, পায়ের উংলি চাটতে আসছে। তখন উনি বলছেন, এ কি, এটা আবার কিরম মায়া, এ তো আমি দেখিনি যে সারা পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী জগৎ কোথায় গেল, সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি কোথায় গেল, আর এর সারা পৃথিবী জলময়, আর একটা ছোট্ট বাচ্চা সে আবার পায়ের উংলি চাটছে। উনি তখন ব্রহ্মাজির কাছে গেলেন, বললেন, এটা তোমার কিরম সৃষ্টি যে তুমি একটা প্রত্যেক একটা বাচ্চাকে সৃষ্টি করলে এই বট পাতার মধ্যে, যদিও এটা বট গাছ নয়, বট পাতার মধ্যে বাচ্চা শুয়ে কোথায় যাচ্ছে? বলছে, দেখো ইনি বিষ্ণু ভগবান। তো এই যে মার্কেন্ডেয় পুরাণ, এর থেকে আমরা দেবী সৃষ্টি পাই কিন্তু। মানে আমাদের আজকে যে দুর্গা, তোমরা যা দুর্গা পুজো সব যা কিছু দেখছো, এই মার্কেন্ডেয় পুরাণ থেকে কিন্তু সেই সৃষ্টি। এই দেবতা এই অস্ত্র দিল, ওই দেবতা ওই অস্ত্র দিল। তো ওইটা একটা আলাদা পার্ট। এই পার্টটা যেটা বলছিলাম, এই মার্কেন্ডেয় ঋষি বিভিন্ন জায়গায় তপস্যা করেছেন। তার মধ্যে একটি ক্ষেত্র হচ্ছে এই আমাদের ওঙ্কারেশ্বর, আরেকটি ক্ষেত্র হচ্ছে আমাদের অমরকণ্টক, যেগুলো আমাদের যাত্রার মধ্যে পড়ছে। তো এই মায়া যখন ওই বট পাতার উপরে বিষ্ণু ভগবান আঙ্গুল খাচ্ছেন ছোট্ট বালক হয়ে, তখন মার্কেন্ডেয় ঋষি ওনার কাছে গিয়ে বলছেন, তুমি কে? বলছে, আমি তো মায়া, আমি মায়া। তুমি দেখতে চাইলে না, এত কিছু জপ তপ তপস্যা সব কিছু করে এত জ্ঞান ট্যান হয়ে তুমি দেখতে চাইলে যে মায়াটা কি জিনিস। এই দেখো, আমি মায়া, আমার থেকেই সবাই সৃষ্টি হলো, আমার থেকেই সবাই ধ্বংস হলো, আবার আমি ছোট্ট জীব হয়ে, ছোট্ট বালক হয়ে এই বট পাতার মধ্যে শুয়ে আছি। তো এটা মানে মার্কেন্ডেয় পুরাণ অনেক বড় পুরাণ, এবং তার সম্পর্কে বলতে গেলে অনেক হিউজ একটা চ্যাপ্টার। মানে মার্কেন্ডেয় ঋষির একটুকুনি ছোট্ট একটা ভূমিকা, মানে ছোট্ট একটা অংশ আমি বললাম যে ওনার এত বছর, যেমন আমরা জানি ঋষি বিশ্বামিত্র 10,000 বছর তপস্যা করেও
মেনকার রূপে ইয়ে হয়ে গিয়ে সেই মতিভ্রম হয়ে যায়, যেটা শকুন্তলা দুষ্মন্তর যা কাহিনী আমরা যেটা জানি। তো মার্কেন্ডেয় ঋষিরও এরকম অবস্থা হয়েছিলেন যে উনি মায়াকে দেখতে চেয়েছিলেন, আর কোনো ঋষি কিন্তু মায়া দেখতে চাননি। এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। মার্কেন্ডেয় পুরাণ কিন্তু সেই থেকেই তৈরি হয়েছে, মানে সেই থেকে সৃষ্টি হয়েছে। একমাত্র মার্কেন্ডেয় ঋষি যিনি সমস্ত তপস্যা করার পরে সেই মায়া দেখতে চেয়েছেন, আর সেই মায়ার জালে আমরা সবাই কিন্তু জড়িয়ে রয়েছে। তো আজকে যদি আমাদের মায়ার জাল একটু কাটে, মার্কেন্ডেয় ঋষির কাছে আমরা একটু প্রার্থনা করব। আমরা এখন সোজা দেখতে পাচ্ছি মার্কেন্ডেয় ঋষির আশ্রম, যেখানে উনি এসেন জপ ধ্যান করেছেন। সেই এতে আমরা যাব। সেই শিবজি রয়েছেন। আমরা অমরকণ্টকে, তোমরা দেখে এসছো অমরকণ্টকে, তো আস্তে আস্তে আমরা এগিয়ে যাই ওদিকে। মার্কেন্ডেয় ঋষি 7 বছর বয়সে তার দেহান্ত হয়। এটা তার লেখা ছিল। যখন এটা জানতে পারি তখন যে ওই শিল্প যে কাজ ছিল, লিঙ্গ যে কাজ ছিল, সেটা কাজ লিঙ্গ থেকে শিল্পী বাইরে আসে কাজ চেষ্টা করে। আমার আয়ু 7 বছর, তাহলে আমি পরে বলো এইটা দেখা कहाँ रुके हुए हैं आप लोग? विश्वकर्मा में हर साल उधर। साल आते थे ना आप लोग? हाँ, हर साल आता हूँ। आप हाँ 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 आप नंबर भी दे गए। हाँ 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 हाँ। चाय लोगे? अरे बाबा नंबर गंगा सागर के तरफ हाँ 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 हाँ। हमारा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, সকালবেলা ছিল না, এই থাকে না, এরা চলে যায় নর্মদার পারে পারে। আমি যখন প্রথম আসি দেখি যে এরা পাহাড়ের খাজে খাজে আসন পেতে সারাদিন ওই জলের দিকে তাকিয়ে আছে। থাকতে থাকতে জানতে পারলাম ওরা জলের দিকে তাকিয়ে নর্মদা মাকে দেখতে পায়। ওরা টপ করে সারাদিন বসে, ওদের জায়গা, প্রত্যেকের জায়গা রেডি করা আছে, অন্য কেউ বসবে না। প্রথম ভাবলাম মাছ ধরে না কি করে এখানে বসে সারাদিন, যতবার আসি দেখি ওইখানে বসে আছে। পরে জানতে পারলাম ওরা জব করে। তখন আমি জব সম্পর্কে অত ভালো জানতাম না। তো এরিয়া যে এখনও আছে, তোমরা যদি নর্মদার এই কিনার ধরে চলতে থাকো, এই মার্কেন্ডেয় আশ্রম, তারপর পড়বে মৌনি বাবা, তারপরে পড়বে ছোট মৌনি বাবা, সেটা প্রায় 2 কিলোমিটার দূর। কষ্ট করে গেলে ছোট মৌনি পাহাড়ের মধ্যে গুফার মধ্যে কীভাবে রাজপ্রাসাদ করেছে দেখবে। বিভূতি কাকে বলে? এদের সাধুদের বিভূতি কি করতে না পারে। আর এদের কাছে সমস্ত মিনিস্টাররা আসে এখানে, তারা বসে ওই বাইরে বসে থাকে দেখা করার জন্য। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল, উনি ডেকে নিয়েছিল, আমি এমনি গিয়েছিলাম দেখতে। অনেক কথা হয়েছিল ওনার সাথে আমার এক সময়। তো সত্যি বিভূতি আছে, ক্ষমতাশালী লোক এরা অনেক কিছু করতে পারে, কিন্তু বাইরে বেরোয় না, করার জন্য একদম মরিয়া না, চেষ্টাই করে না, মানুষ করে দেয় এদের জন্য। সেই পূর্ণভূমি আজকে তোমরা দেখতে পাবে। আজকে মৌনি বাবাও দেখতে পারবে, যেখানে আমি এসে খাবার পেয়েছি যে একটা ছোট ছোট কটোরের মধ্যে ওদের বাটিও বলতে পারো, তার মধ্যে খাবার রান্না করেছিল। আমরা অনেকজন ছিলাম, ওইটুখানি থেকে সবাইকে খাইয়েছিল, তাও বেঁচে যাচ্ছিল। কি করে হচ্ছিল জানি না। সেই মৌনি বাবা আজকে নেই, ওনার দেহ চলে গেছে। এখানে 5 বছর ছিল। মৌনি বাবা মাটির বাড়ি ছিল, চাঁদের আলোয় বসে কাহিনী শোনাইয়ে না। আর নর্মদা মাকে ডাকতো, মনে হচ্ছে যেন জল থেকে উঠে আসছে। তুমি প্রশ্নটা বলো। जो हम बताएंगे तुमको तब तुम जानो। अच्छे बुरे का ज्ञान है कि नहीं? उचित अनुचित का ज्ञान है कि नहीं? सबको होता है। हम तो मनुष्य हैं, ये तुम्हारे पैर में मच्छर बैठता है तो तुम मारते हो तो उड़ जाता, वो भी समझता कि मेरे को मारने को कर रहा। बताओ,
बोलते हैं कि उसको ज्ञान नहीं, ज्ञान ना हो तो कैसे उड़ के भाग दे। हर जीव का ही हो दाल में चिड़िया बैठी है, तुम ऐसे हाथ करो वो भी उड़ के भाग जाती कि मेरे को मारने को कर रहा है। तो हमको तुम तो मनुष्य हैं ना, कोई गलती हो जाती है तो अपन लोग बोल देते हैं अरे यार हमको नहीं मालूम था। मालूम सब रहता है, सबको मालूम, अच्छा बुरा का ज्ञान सबको हो, सबको मालूम होता है। ऐसा नहीं है। तो जो अच्छा काम है हमको समझ में आता है वो हमको करना चाहिए, और जो गलत समझ में आता है वो नहीं करना चाहिए, है ना। बिल्कुल है। क्या कहा है कि अगर मेरे ऊपर डिपेंड हो जाए उसकी मैं ऐसी व्यवस्था करता हूँ जैसे माँ बाप छोटे छोटे अबोध बच्चे की व्यवस्था नहीं करते हैं। पानी थोड़ा मांगता है कि रोटी खाने को मांगता है कि सोने মানে को কি बोलता বোঝালো? है कि टट्टी पे যাদের এই অবস্থা ডিপেন্ড করে না ভগবান, लेकिन उसकी व्यवस्था उल्टा है। अपने आप होती रहे। होती रहती, माँ बाबा ही कर देती है। क्यों होती है? वो बच्चे। दूसरे नहीं, वो दूसरे पर डिपेंड है, वो कुछ भी नहीं जानता, डिपेंड है। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है अपने आप को समझने लगता है कि मैं कमा लूंगा, खा लूंगा, सब कर लूंगा, तो फिर उसको बिना मांगे कोई रोटी नहीं देता है। चाहे लाख रुपया कमाता हो लेकिन घर में जब रोटी मांगेगा तभी मिलेगी, और नहीं पहले पूछ पूछ के जबर बोलते हैं मैं तो भगवान को जानता हूँ। ये तो बोलने की बात है, भगवान को नहीं जानते। भगवान को जब जान लोगे तो भगवान पर तब तुम्हारी फिक्र चिंता ही खत्म हो जाएगी। भले हमको नहीं फिक्र कि हमारे घर में सब आदमी आ गए हैं, कहाँ दूध होगा, कहाँ शक्कर हो, मेरे कोई फिक्र नहीं, तब मेरी व्यवस्था होती। हमको 100 कुंटल गेहूं लगता खाने में साल में, हमारे न खेती न बाड़ी न, हम किसी से मांगते भी नहीं, ऐसे पड़े रहते हैं। देखो कुछ जो भी বলেছিলাম नहीं। ऐसे तो इतनी बड़ी व्यवस्था कहाँ हो रही है? योगक्षेम। फिर मेरा अन्य चिंतन नहीं है कि हमको इससे मिल जाएगा, भगत से 1000 रुपया, उससे 10,000, उससे 20,000। मैं नर्मदा मैया का भजन कर रहा हूँ, बैठा हूँ, जो हो रहा है तो लोगों को खिला पिला दो, हमको कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो ऐसे ही रहता हूँ, हमेशा ऐसे रहता हूँ। डिपेंड होना पड़ता है, केवल बोलने भर से नहीं होता है। बोलने को तो सब लोग जानते हो ना, लेकिन है नहीं, अंदर नहीं है, जीवन में अनुकरण नहीं कर पाते। महाराज एक प्रश्न पूछे, आप गंगा सागर गए? नहीं गया हो। तो बोले थे हमको, पंडित जी है ना, अब पंडित जी है, तो बोले थे कि आना आपको हम जांच नहीं मिली ना, ओ चश्मा मिल गई। महाराज एक प्रश्न, ये जो बचपन में हम लोगों को माता पिता बोलते थे कि माता पिता ही परम गुरु है, तो इसके ऊपर अगर हम कहीं भी जाए तो बोलते हैं वहाँ एक गुरु जी बैठा था, ये था, तो इसको हम कैसे हमारा गुरु तुमसे समझ बात पाए करता है, कि सबसे करता है, तुम लोग समझा नहीं पा रहे। तो सही रहा दिखाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, एक तत्व होता है, कोई अलग नहीं होता, तत्व होता है, केवल बोध होता है। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि ये काम कर लूं, नहीं करूं, सब कई विकल्प अपने मन में चलता है, जाऊं ना जाऊं, कैसा करूं, क्या करूं, यानी अपने अंदर कल विकल्प बनता है कि नहीं बनता। हम अच्छे बुरे काम सोचते रहते हैं, बुरा काम भी सोचते रहते हैं कि कहीं चोरी कर ले, पैसा जाए, कहीं कुछ भी कर ले, अच्छा भी सोचते हैं, बुरा भी सोचते हैं। तो जब वो जो गुरु है तुम्हारे अंदर, तो जब तुम गलत सोचते हो, गलत काम करने को जाते हो, तो तुमको मना करता है। जैसे मान लो तुम चोरी करने जाते हो, तो तुम्हारे अंदर से हो रहा कि गलत काम है, चोरी नहीं करना चाहिए। झूठ बोल रहे हो लेकिन जानते हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हारे अंदर वो बोध हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई बोल आ रहा है कि
झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुमको भी मालूम है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो वो क्या दो मन है, एक झूठ बोल रहा है, एक झूठ को बोल रहा है नहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है। ये क्या है? तो वो जो सद्बोध कराता, अच्छा बोध जो पैदा कराता है, वही तुम्हारा सतगुरु है और वही परमात्मा है, वही भगवान है। अगर तुम उसकी बात को नहीं मानोगे, नहीं मानते हो, तो भगवान की बात तुम नहीं मानोगे तो भगवान तुम्हारा साथ छोड़ देता है। तो साथ छोड़ देता है, तो जब आदमी का भगवान साथ छोड़ देता है तो कमजोर हो जाता है। तो जब आदमी कमजोर हो जाता है तो उसका जी नहीं घबराने लगता, धक 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 होने लगता कि नहीं होता? होता कि नहीं? आप चोरी करने जाते तो जी धक पकाता कि नहीं धक पाता? यानी गलत काम हम करने जा रहे हैं तो भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया। भले हम चोरी में सक्सेस हो गए, लेकिन कभी भी तुमको जब हम दिखेंगे तो मेरा जी जरूर धकबकाएगा कि एक बार हमने इसका मोबाइल चुराया था यार, जबकि तुमने हमको कोई न रिपोर्ट किया है, न कोई तुमको जानकारी है। मैं अपने आप में जब कभी जीवन में तुमको देखूंगा, अगर हमने तुम्हारा कोई चीज चुराया है तो देखते से मेरा जी जरूर धड़केगा। होता है कि नहीं होता? ऐसा यानी भगवान उसका साथ छोड़ देता। अगर हमने चोरी नहीं किया है, आपने जबरन मेरे को चोरी में फंसा दिया है, हमको पुलिस ले गई है, लेकिन मेरा जी घबराएगा नहीं, कारण कि हमने चोरी नहीं किया है। अगर हम चोरी किए हैं तो हमेशा तुमको देख के मेरा जी घबराता, धड़का करने लगता है ना? तो ऐसा काम मनुष्य को करना चाहिए कि जिसके करने से उसका जी न घबराए, धड़कना नहीं चाहिए। अपने को ही अच्छा काम समझते। लड़की है, अब हम देखने के बहुत नियत चश्मे होते हैं, जैसे ये चश्मे में तुम कांच लगा लो, काला लगा लो, लाल लगा लो, जैसा कांच लगाओगे वैसे तुमको दुनिया। इसको हम बेटी के रूप में देखते हैं, वो लड़का बहन के रूप में देखता है, ये बच्चा माँ के रूप में देखता। सबके देखने के अलग अलग उसके नजरिए है। उसका पति पत्नी के रूप में देखता में दोष है, हम छिपाते आ रहते, सब दोष भरे हुए। सबके अंदर काम वासना है, क्रोध सबके अंदर है, लोभ सबके अंदर है, मोह सबके अंदर है कि नहीं? बताओ। भले तीरथ करने आए हो, सबका अंदर ही है। तो जब तक ये चीज नहीं खत्म होगी तब तक भगवान की मंजिल नहीं मिलेगी। चाहे तुम लाख तीरथ करो, चाहे हजारों बार घूमो, चाहे जितना जो भी करो, ये तो अपने ही वृत्तियों को सुधारना होगा, काम क्रोध लोभ त्याग करना पड़ेगा, कंट्रोल करना होगा। विषय तो ऐसे है जैसे आग में हमारा अगर पैर रख जाता है तो हमारा पैर जल जाता कि नहीं जलता है? तो हम जल्दी से पैर को ऊपर उठा लेते कि नहीं उठा लेते? मेरे को मालूम होगा कि ये आग है, इसमें पैर नहीं रखना चाहिए, लेकिन दूसरे दिन फिर मैं उसी आग में पैर रखता हुआ, फिर जलता, फिर उठाता। जानबूझ के। ये इंद्रियों का दोष है। तंबाकू खाता है आदमी, तंबाकू लग जाती है, फिर भी वो तंबाकू। शराब पीने वाला खूब लात जूते खाता है, फिर भी वो शराब पीता है। ये इंद्रियों का दोष है, नहीं मानता, वहीं वहीं जाता है। हर विषय चाहे जितना कहे कि हमारे अंदर मोह नहीं है बाबा, अरे मोह नहीं है तो अपना पराया फिर क्यों है तेरे में? तेरे बच्चे तेरे हैं, उसके बच्चे उसके हैं, है ना? अपना पराया मोह के कारण है ना? राइट। लोभ है कि नहीं है? लोभ तो बिल्कुल। क्रोध भी है, गुस्सा भी है, काम भी है, तो फिर कहाँ क्या है? क्या कंट्रोल? इनका कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा, हमेशा हम गलत चिंतन करते रहते हैं ना, तो मन भी साला वहीं जाता है। अच्छा चिंतन करो ना। बोलो, प्रश्न बोलो। देखो, इतना ही नहीं है जितना तुम देख रहे हो। हम लोगों को यहाँ से कहीं जाना है, कोई मंजिल है हमारी, तो आदमी को जहाँ जाना होता वहाँ की तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल।
तुमको यहाँ ओंकारेश्वर आना था तीर्थ करने, तो महीना 2 महीना से तैयारी बनाए होगे 4 महीने पहले। कि जाना है, तारीख है, ये काम है, पैसा था, हम सब व्यवस्था किए हो। 4 दिन में लौट जाना, तो इतनी बड़ी तैयारी 4 महीना से, और उस मंजिल में जहाँ जाके कभी नहीं लौटना है तुमको, वहाँ की क्या तैयारी बताओ। यहाँ की तैयारी तो पैसे हो गए, ये तुम्हारे भाई कुटुंब परिवार सबको साथ में ले लिए, यहाँ का तो है। लेकिन आखिरी मंजिल में कोई पूछो जाने वाले हैं क्या, ये शरीर भी नहीं साथ में जाता कि जाता है, नहीं जाता। तो जो जाता है उसकी हमको तैयारी करना है। हमारे सत्कर्म, हमारे कर्म ही साथ। मेरा एक जैसे हर एक चीज का एक उद्देश्य होता है ना जीवन में, तो हम लोग इस धरती पर जन्मे हैं, तो एक इंसान का क्या उद्देश्य होना चाहिए? देखो, इंसान की एक मानवता होती है, मनुष्य की एक मानवता होती है ना। ये तो हम बोलते हैं कि कुत्ते से सीखो। देखो, हर जीव, मनुष्य सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि बताया गया है, देवताओं को भी बोला। तो हमको ये लगता है कि मनुष्य कुत्ते की सबसे गई गुजरी जात होती है ना। किसी को भी हम गाली देते हैं तो बोलता हूँ चले कुत्ते को वहाँ से कोई भी मार देता, भग जाता, फिर भी आ जाता, उसको मान अपमान का भी बोध नहीं होता, फिर तुम्हारे दरवाजे में आ जाता। लेकिन वो कुत्ता भी हमसे तुमसे अच्छा है, बहुत प्रभु भक्त है, प्रभु भक्त है, स्वामी भक्त होता है। अभी हमको तुम चौकीदार रख दो घर में, या कहीं चले जाओ तो हम तुम्हारा घर साफ कर सकते, लेकिन कुत्ता तुम्हारे दरवाजे में नहीं आने देगा किसी को। हर जीव समयबद्ध है, सब में नर मादा औरत आदमी हर जीव में होते, इससे तो प्रकृति की रचना है। लेकिन वो उनका संबंध केवल संतानोत्पत्ति से रहता, बाकी नहीं रहता। हर जीवों में देखो बढ़िया अच्छे से रहते हैं, केवल संतान पैदा करते। लेकिन मनुष्य इतना गया गुजरा निकल गया, ये अपने पतन का साधन बना लिया, विचारों का, शरीर का, हर चीज का। फिर वो क्या समझेगा बताओ, है ना। कुत्ते से भी गया गुजरा। तुम सब बेटा जानते हो क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब अपने आप में खोज करो, तुम्हारे को सब समझ में आ जाता है। मनुष्य की एक मानवता होती है, ये तो अपनी अपनी ये तो होती है। हमको परोपकारी होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, सेवक होना चाहिए, गरीबों पर दया करना चाहिए, सत्संगियों पर चर्चा, यही मनुष्य की मानवता। और क्या, माँ बाप समझो, मर्यादाओं को समझो, कौन बड़ा है कौन छोटा है, यही मानवता है। हम दूसरों से ईर्ष्या, जलन, द्वेष, घृणा आदि आदि जो विचार मेरे अंदर पैदा होते हो ना हो, उनका मैं कंट्रोल करूं, यही मानवता है। इस चक्कर में मत रहना कि बाबा ज्यादा जानते, जो मैं बताऊंगा बता रहा हूँ वो सब तुम जानते हो, केवल जीवन में अनुकरण नहीं करते। बात तुमको सुनने में अच्छी लगती है, चलो बाबा ने अच्छा बोला था, अभी जाके भूल जाओगे, जीवन में उसको ढालो। जीवन अनुकरणीय जीवन बने, केवल बोलने भर से नहीं होता। बोलने को तो टीवियों में अच्छे अच्छे प्रवचन सुनते होगे, नहीं सुनते? पत्रकार लोग कितनी ऊंची ऊंची बातें बोलते हैं, नेता लोग कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन जानते हो उनकी बेईमानी कितनी बड़ी रहती है। ये तो बोलने की एक शैली है,
अभी हम वक्ता है, हम तो कुछ भी बोलने लग जाए, हमको सब पुराणों की बात बोलने लग जाए कहीं की बात। वो एक शैली है, उसमें आप आकर्षित मत हो, आप अपने आप को देखो बस। आप अगर अपने आप को कंट्रोल कर लोगे तो दूसरा आदमी तुमको खुद भगवान जैसे अच्छा दिखने लगता है।